మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్లో కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి భారతి ప్రవీణ్ పవార్ పర్యటించారు. జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా కొత్త యువ ఓటర్లకు ఓటు ప్రాముఖ్యతను ఉద్దేశించి అవగాహన కల్పించారు. ప్రధాని మోదీ నమో నవమత్ దాతా సమ్మేళన్ ప్రత్యక్ష ప్రసార కార్యక్రమాన్ని ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ అధికారులతో కలిసి ఆడిటోరియంలో కేంద్ర మంత్రి భారతి పవార్ వీక్షించారు. అనంతరం ఓటరు కార్డులు నమోదు చేసుకున్న నూతన యువ ఓటర్లకు గుర్తింపు కార్డులు అందజేశారు. मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मंगलगिरी एम्स हमारा वो एम्स है जो अभी प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट को जोड़ा है, डेवलपमेंट की गारंटी दी है। तो वो गारंटी की गारंटी मंगलगिरी एम्स भी है। वो एम्स जो आज बेहतरीन टर्शरी केयर के लिए इस राज्य की सेवा में जुटा है। मैं धन्यवाद देती हूँ सभी को, सभी मान्यवर आज इस मंच पर उपस्थित श्री मंथदास जी, श्री टी.एस. रवि कुमार, श्री माधवानंद वॉरियर के रूप में मैं आपको देखती हूँ, और पत्रकार बंधु, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया। Today we gather here not just to make an event on the calendar, but to celebrate the essence of democracy. Right? Is it right or not? Yeah. The very foundation that empowers us as citizens of this great nation. And I stand before you with immense pride and joy as we address the first-time voters of our country. You, my friends, are stepping into a realm of responsibility and empowerment that is unique to the democratic fabric of our nation. As you prepare to exercise your right to vote, remember that you are not just casting a ballot, you are shaping the future of our beloved India. National Voters' Day is not just a celebration, it is a call to action. A reminder of the power that lies in each vote cast. It is a day that marks the strength of our democracy, where every citizen, irrespective of caste, creed, religion or gender, has an equal say in the destiny of our nation. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the government has implemented significant economic reform aimed at forecasting growth and development. The government has prioritized infrastructure development with so many projects, including AIIMS Mangalgiri, Bharatmala, Sagarmala, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, so many contributing to the improvement of roads, ports, highways, rural connectivity, health infrastructure, so many. Digital India is also the initiative has played a pivotal role in transforming the country into digitally empowered society. Increased emphasis on digital platforms and technology has led to advancement in governance, service delivery, and financial inclusion. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has facilitated financial inclusion by ensuring that even the marginalized section of our society have access to banking services. It has made strides in strengthening diplomatic ties and enhancing India's global standing. The government has taken measures to strengthen national security, including modernization of the armed force. Initiatives like Make in India in the defense sector and the robust response to security challenges, ensuring the safety and sovereignty of the nation. So many things we saw in this last 10 years. The aim is
the right action, right decision. And I think, friends, at first time voters, you hold in your hands the ability to drive the change, to shape policies, and to elect representative who will work for the betterment of our society, for our nation. And today we urge you to speak up, to make your opinions count, and to be an active participant in this democratic process. इस देश में विविधता है, अनेकता है, संस्कृति अलग है, भिन्नता है, और इसके साथ आपका एक वोट इसमें एक धागा बन जाता है, वो धागा जो एक साथ जुड़ता है और देश के प्रगति के लिए काम करता है। सो हर एक का वोट, वो एक प्रत्येक का वोट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता रखता है, जो हमारे संविधान ने हमें सिखाया है, हमें दिया है। वैसे हम वोटर्स के माध्यम से आज युवाओं के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात रखी। वो चाहते हैं कि इस देश के विकास को बढ़ाना है तो यूथ को अपने अधिकारों को समझना भी है। एक वोट सिर्फ एक वोट नहीं होता है, वो ताकत होती है, वो अच्छी भविष्य के प्रति हमारी समर्पण की भावना को भी दर्शाता है। ओके, मैं बीजेपी से। ओके, आप कैसे यूज करती है फ़ोन को आपके डेवलपमेंट के लिए? मोस्टली मैं तो काम के हद तक मैं फ़ोन का यूज़ करती हूँ। कैसे? हाउ? जितना भी काम है उसके हद तक सीमित रखती हूँ फ़ोन को। अभी जो भी फॉर एग्जांपल मैं इतने दूर में हूँ, इधर मेरे को इसका सपोर्ट चाहिए होगा, तब जाके मैं फ़ोन का उपयोग करती हूँ, नहीं तो मैं फ़ोन नहीं लेती। नहीं, आप कुछ कोई नया फ्लाइट्स या फिर कोई एविएशन से रिलेटेड चीज़ें जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए कभी कभार मैं यूट्यूब में वीडियोस देख लेता हूँ, या फिर कभी कभार डेली ऐसे कुछ करते हैं आपकी उसमें से मेरा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ सीख रही हूँ तो डेली आई एम किसी ऐप का हेल्प लेके मैं कुछ मेरा खुद का डेवलपमेंट, लाइक कुछ लैंग्वेज सीखना हो कर पा रही हूँ। ओके, गुड गुड गुड। देखो, योगा को भी समझना, आसन समझना, उसको कौन से कैसे करना है, ये भी एक तुरंत मिलता है, एक विजुअल क्लियर हो जाते हैं। ये रूट है, ये नर्वस सिस्टम है। हमारे पास तो वो बुक ही थे, बुक पिक्चर से ही हम लोग समझते थे। ओके, नेक्स्ट, एनीबडी? लास्ट। Like-minded people from globally, and I use YouTube to learn research skills, to learn new skills like I'll be watching speeches given by various leaders, and I'll be using mobile phone to read research papers daily from various journals. Daily you are reading that journals? Research papers. रिसर्च के लिए वेरी गुड, वेरी गुड। इनका डेटा चेक कर लो सर, इनका डेटा चेक कर लो कितना रिसर्च। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, वेरी गुड, रिसर्च के लिए। ओके, चलो हो गया। उनको वो हॉल, वो पिलर, वो कलर, वो कुछ नहीं दिख रहा था, सो कंसंट्रेशन सिर्फ वो आई पे थी। अभी आपको ये तय करना है, मुझे बाकी भी देखना है, पिलर कलर भी देखना है, सिटिंग भी देखना है, किसने क्या पहना है, क्या कैसे लग रहे हैं, कहाँ बैठे वो देखना है, या मुझे सिर्फ वो मछली की आँख को देखना है। अगर आप आपके गोल को अच्छी तरह समझ रहे हो तो अच्छी बात है, वरना ये फ़ोन आपको यूज़ करते करते टाइम कब चला जाएगा, कब कॉलेज ख़त्म होगा, कब बाकी क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एडमिशन, नेक्स्ट हमारा क्या फ्यूचर है, ये आपको समझेगा नहीं। अलर्ट मोड पे आओ। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन उस आपका रूट तय कर लो। मेरा रूट कौन सा है? कन्फ्यूजन में नहीं रहने का। ये राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। एक गोल सेट कर लो। जब आप उस दिशा में चलोगे तब आपको अचीवमेंट भी मिलेंगी। लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे
तो बाकी फिर आप संभाल लो। हमारी फैमिली ने बहुत बहुत सपने देखे हैं, सिर्फ सपने नहीं देखे, उन्होंने पूरी उनका पूरा फाइनेंस यहाँ पे लगा दिया है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़े, इस एम्स में पढ़े। इसके लिए नर्सरी से आपके एडमिशन लेने से उन्होंने सपना देखा है माता पिता ने। यह अभी 1 साल का 2 साल का एडमिशन का विषय नहीं है, उन्होंने बचपन से आपको डेवलपमेंट के लिए सोचा है, तो बचपन से आपके लिए मेहनत की है। उन्होंने खुद पर कभी खर्चा नहीं किया होगा, आपके लिए वो एजुकेशन में किया होगा। उसको भी समझो, उसको भी समझो। हमारी फैमिली ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे एडमिशन लेना ये बहुत सौभाग्य की बात है, सबको नहीं मिलता है। एक स्टूडेंट पे सर हम कितना खर्चा करते हैं एम्स में? ऑलमोस्ट 1 पर ईयर 1.5 करोड़। एक बच्चे पे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है? 1.5 करोड़ एक बच्चे पे। तो सोचिए आपके माता पिता ने कितनी मेहनत की होगी यहाँ पे आने के लिए। ऐसे ही नहीं मिला ये एडमिशन, रात रात भर के आपने भी मेहनत की है, लेकिन उसके लिए आपको डेवलप करने के लिए माता पिता ने भी मेहनत की है, उसको भूलो नहीं। एग्ज़ाम है, हेल्प लीजिए, डिबेट करिए, एक दूसरे की मदद करिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अच्छे से जाके टीचर्स को भी बोलिए, हमें फिर एक बार हमें समझाइए। टीचर्स सब, हमारी फैकल्टी, हमारा स्टाफ सब आपके लिए रेडी है। फ़ायदा कब लेना है, कैसे लेना है, ये आपने सोचना है, वरना हंसी मजाक में तो चले जाएंगे, दिन भी चले जाएंगे, साल भी चले जाएंगे, फाइनल भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ करना है। ये सारे हमारे सीनियर्स की मदद भी लेनी है। जब मेरा पहला इलेक्शन हुआ ज़िला पंचायत का, आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये युवाओं का युग है, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करो और इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से खुद की डेवलपमेंट के साथ देश की डेवलपमेंट में जोड़ो। G20 का एक मैं लास्ट एग्जांपल लेके ख़त्म करूँ। G20 का मीटिंग हुआ, सब अलग अलग देशों से डेलीगेट्स आ रहे थे, मंत्री आ रहे थे। बहुत सारे लोगों को उनका ही लैंग्वेज पता था, इंग्लिश भी इतना कंफर्ट नहीं था। पीएम साहब ने एक ऐप डेवलप किया था, वो ऐप हमने भी डाउनलोड करना है, उनने भी डाउनलोड करना है G20 का। उसमें सारा ये तो था ही, रूट मैप था ही, पूरा मैपिंग तो था ही, लेकिन उसके साथ लैंग्वेज का ऑप्शन दिया था। तो मेरे सामने अगर कोई जापानीज मंत्री बैठ के जापानीज में ही बात कर रहे हैं और मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ, तो बस दोनों के ऐप खोलने हैं, मैं हिंदी में पूछूंगी, वो ट्रांसलेट होगा जापानीज में, वो जापानीज में बात करेंगे, वो ट्रांसलेट होगा हिंदी में। ईज ऑफ डूइंग, इतना इजी रहा कि एक हमारे पुलिस ऑफिसर ने उनका अनुभव शेयर किया था कि वो किसी डेलीगेट के साथ बाहर गए तो शॉपिंग के मॉल में चले गए, तो वो भाषा नहीं जानते थे और ये हमारे पुलिस ऑफिसर को भी लगा कि अभी भाषा के लिए इनसे कैसे करें, तो उन्होंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया और उसके बाद शुरू हो गया शॉपिंग। तो वो शॉपिंग करते करते उनको समझा ही नहीं कि भाषा नहीं भी बोलने आए तो भी ये टेक्नोलॉजी से हम इजीली समझ सकते हैं। तो अगर ये हो सकता है तो बहुत सारे बदलाव टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं। भाषा का कोई अभी ये नहीं रहा है। हम आगे बढ़ने के लिए बस कंसेप्ट क्लियरेंस होने ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ आगे जाओ। आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो बस उस पर खुद को भी लक्ष्मण साई अभिलाष मारम।
Sri Varshini Gurraj. Vishwas Verma Vadapalli. On behalf of AIM, now I request our President Sir, Dr. T.S. Ravikumar Sir, to present a memento to Honorable. We request all our students